Yes, sir. Okay, so in the last class, we have started with the third module. So the third module is basically interfacing of the different components with 8051. So the first thing that we are learning today is the interfacing of analog to digital converter with 8051. Okay, so that is the first thing that we'll be learning. So before that, we have discussed what is an analog signal, what is a digital signal. So can someone tell me what is analog signal and what is digital? What Analog do you mean is by analog? voltage and digital is data. Okay, exactly. Analog. Okay, so analog is something which is represented in the form of voltage, that is called as analog, and something which is represented in the form of data. That data can be binary data, that can be decimal data, it can be hexadecimal data, whatever that representation is. That data is nothing but called as digital. So because your processor wants to manipulate the data, so processor के पास हमेशा digital form में data आपका आएगा. Okay, whereas जो collect करते हो आप data, whatever you collect, that collection of the input is generally taken in the form of voltages. So that is something analog. So in order to convert analog signal to digital signal, we require a ADC converter. Okay, so that we'll be learning today. Yeah, I'll quickly share with the PPT that we have. Okay, so please draw the diagram. All of you draw this diagram. This is the IC or the pin diagram of 0809, also called as analog to digital converter. Okay, it is a 8-bit analog to digital converter. So either take a screenshot shot of it or just draw it. Okay, take your time. I'll be giving you 2 minutes. Is 2 minutes sufficient? या आप बाद में draw करेंगे. What should we do? Do you want time to draw it Two right minutes, now? sir. Okay, fine. Fine. Okay, by the time you people are drawing, I just want to discuss a small thing, okay, which is not related to this topic. I just want to ask you guys to learn about a person. The person name is Che Guevara. Okay, Che Guevara. If it is possible, try to learn about him. Okay, so today is it is his death anniversary. किसी को पता है Che Guevara के बारे में? Does anybody know who Che Guevara is? No. Search it on Google. By the time you people draw it, he's a revolutionary person. Sometimes people label him as a terrorist, and sometimes people label him as a revolutionary person. So just try to find out and try to learn about him. Who is this guy actually? It will play an important impact on your life. Okay, so just for that sake only, nothing related to syllabus. Okay, done with the drawing. You can find that Che Guevara person on many people T-shirts. देखा किसी ने डायग्राम? Okay, done with this diagram. आगे चले? Yes. Okay. So this diagram is nothing but it is a IC diagram of 0809. So what is the total number of pins that it has? What is the total number of pins? Can someone tell me? It is 28 pin. 28. It is 28 pin IC. Okay, it is a 28 pin IC, and this IC is generally called as analog to digital converter. And it is how many bit analog to digital converter? It is a 8-bit Eight. ADC. Okay. So what is the meaning of 8-bit ADC? It can take any voltage. It can take any voltage. Okay, and it can convert into 8-bit output. Okay, it can convert into 8-bit data. Okay, so that is the working of this particular IC. Okay, so ये voltage लेगा. वोल्टेज जो है वो कोई भी वोल्टेज लेने दो, बट वो वोल्टेज जनरली दो पॉइंट के बीच में होगा, दैट इज प्लस वीएफ एंड माइनस वीएफ के बीच में होगा. ओके, सो कोई भी इन दोनों के वोल्टेज के बीच में देयर विल बी अ वोल्टेज. उस वोल्टेज को इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 8 बिट डेटा. ओके, सो 8 बिट डेटा इज इक्वल टू 1 बाइट, एंड वो 1 बाइट डेटा को आपको स्टोर करना है बेसिकली इन योर 8051, जो हम लोग आगे देखेंगे. बट फिलहाल ये 8 बिट
डेटा जनरेट करेगा. ओके, सो we'll just quickly look into the different pins that is over here. So हमारे पास टोटल 8 चैनल है. ओके, वी हैव गॉट 8 डिफरेंट चैनल्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैनल? अगर मान लो ये एडीसी है. ओके, इफ दिस इज अ एडीसी, ओके, इट जनरेट्स एन आउटपुट. वो आउटपुट कितने बिट का होगा? कितने 8 बिट का bit. आउटपुट होगा? 8 बिट. और इनपुट क्या होगा? एक वोल्टेज होगा. ओके, सो वो जो वोल्टेज होगा वो किसी 8 चैनल पे से आएगा. इट विल कम फ्रॉम 8 डिफरेंट चैनल्स. ओके, सो वॉट एवर आई एम गेटिंग एज इनपुट, that input I can take it from channel 0, I can take it from channel 1, I can take it from till how many channels we have? 7 channels, 8 channels. Okay, so 0 to 7 के बीच में 8 चैनल है. कोई भी एक चैनल को आप पकड़ के उसके ऊपर इनपुट आप ले सकते हो. Okay, so what is the meaning? Input is only one, but the source of taking the input is how many? How many source we have? How many channels we have? 8 channels. 8. Is the point clear? Is the point clear? So चैनल का मतलब ये नहीं कि आप 8 इनपुट ले रहे हो. आप इनपुट एक ही ले रहे हो, लेकिन वो किसी एक चैनल पे से ले रहे हो. Either it is channel 0, it is channel 1, it is channel 2, it is channel 3, it is channel 7. So what is the meaning of it? Parallelly you can connect 7 devices to it. आप 7 डिवाइस को कनेक्ट करके उसके साथ आप ADC कन्वर्टर कर सकते हो. ओके, बट एक चैनल पे एक ही इनपुट आएगा. दैट इज फॉर श्योर. इज द पॉइंट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ. इज इट क्लियर? Yes, sir. या सो अगर मैं चैनल 1 पे लेट्स से अगर मैं 25 वोल्ट प्रोवाइड करता हूं, इफ आई एम प्रोवाइडिंग 25 वोल्टेज ऑन चैनल 1, सो इट विल जस्ट कन्वर्ट दैट 25 इनटू बाइनरी, या जो भी उसका कन्वर्जन होगा उसमें ये कन्वर्ट कर देगा. एंड 25 कैन बी रिटन डाउन एज 0 0 1 0 एंड 5 कैन बी रिटन डाउन एज 0 1 0 1. ओके, इट इज मतलब मैं सिर्फ बेसिक सा कन्वर्जन कर रहा हूं. 25 वोल्ट को बाइनरी में सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं. एक्चुअली ऐसा नहीं होता. इसके पीछे there are different algorithms that we use, which is called as the SAA, which is successive approximation algorithm, which is being applied in ADC converter, and that converts it. But right now I'm just for showing for the sake of simplicity, अगर 25 वोल्ट का एक चैनल 1 पे अगर एक इनपुट आता है, उस 25 वोल्ट को it will just convert into a 8 bit input, 8 bit digital output. Is the point clear? Is the point clear? Yes. Yes. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो IN0 to IN7, ये जो टोटल कितने हैं IN0 to IN7, हाउ मेनी इनपुट्स वी हैव? 7, 8. So these 8 inputs are not 8 inputs, these are 8 input channels. Okay, so these are 8 input channels. So write down over there, these are 8 input channels. Okay, these are 8 input channels. Okay, so what is the meaning of channels? On these channels we can connect the device, and that device will basically send their respective voltages. Okay, so 8 sensor ले लो, वो सारे sensors जो है they will collect the data in the form of voltages, and that voltages are given to the ADC converter, and that ADC converter कोई भी एक channel को activate करके और आपका respective output रहेगा वो output generate करेगा. Okay, so these are the 8 input channels, and whatever is written down in yellow, again it is from 2 minus 1 to 2 minus 8. Okay, plus this one also, and this one also, and this one also. Okay, so ये जो yellow color में है, these are your 8 bits which is generated as output. Okay, so in that 2 raised to minus 1 is basically your LSB. Okay, and your 2 raised to minus 8 is your MSB. I hope it is clear. So this pin that we are talking about, it is 2 raised to minus 1, and this pin that we are talking about, it is 2 raised to minus 8. So why minus 8? Because it is starting from minus 1. Okay, so that is why it is 2 raised to minus 1, 2 raised to minus 8. And why channel is from 7? Because it is starting from 0. So total दोनों भी 8 है. One is starting from 0 and other is starting from minus 1. Is it clear? Repeat, sir. Okay. So जो येलो में दिख रहा है आपको, येलो में जो पिन है, which is pin number 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14 and 8. Okay, so these are the pins which generally generates your output. वहां पे उस particular pin पे आपको output मिलेगा. तो आउटपुट मिलेगा मतलब क्या होगा? इट इज जनरली अ बिट रिप्रेजेंटेशन, या तो 1 मिलेगा उस आउटपुट पिन पे या 0 मिलेगा. ओके, सो बिकॉज दीज आर योर डेटा डिजिटल पिन्स, यानी यहाँ पे डेटा आपका आएगा. डेटा इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. सो इस पिन पे आपको 0 या 1 मिलेगा. ओके, सो हाउ इट इज जनरेटेड, ये कैसे जनरेट होगा?
आपने इनपुट दिया, ओके, आपने एक चैनल पे, कोई भी एक चैनल पे इनपुट दिया, वो चैनल को आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम यानी एसए अप्लाई करके उसको आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कराओगे, एंड वॉट एवर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, दैट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज अ 8-bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। वो 8-bit कहाँ पे आएगा? इट विल कम फ्रॉम 2 से लेके 2 - 8 के ऊपर आपके पिंस पे आपका आउटपुट आएगा। सो इफ इट इज कमिंग एज 25 एज आउटपुट, अगर बाइनरी में अगर 25 आउटपुट होगा तो 2 - 1 पे 0 आएगा, 2 - 2 पे 0 आएगा, 2 - 3 पे 1 आएगा, 2 - 4 पे 0 आएगा, 2 - 5 पे 0 आएगा, 2 - 6 पे 1 आएगा, 2 - 7 पे 0 आएगा, 2 - 8 पे 1 आएगा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, वी गेट द आउटपुट। सो आउटपुट हमेशा आपको येलो पिन पे मिलेगा। इनपुट जो है आपको, जो ब्लू पिन है, उस ब्लू पिन में से किसी एक पिन पे सेलेक्ट करके आपको उस एक पिन पे आपको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इनपुट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस, output is generally in the form of data. Is it clear? Is it clear? Do you want me to repeat Yes, again? sir. एक बार फिर से रिपीट करूं? No, sir. Yes, sir. Okay, सिर्फ एक clearly for last 2 minutes, फटाफट at a glance. So this is my IC. This IC, the work of this IC is to take an analog as the input and generate the digital as the output. So analog जो है, it comes in the form of voltages. Okay, so voltage कोई भी voltage आप ले सकते हो, 10 volt, 3 volt, 5 volt, 3.5 volt, 3.6 volt, 7.8 volt, कोई भी voltage आप ले सकते हो। उस voltage को you want to convert it into the form of digital. Okay, so अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, basically on every point I'm speaking and my voice is getting converted into voltages. Okay, so वो voltage को convert करके it takes it to the processor उसको ऊपर process करेगा। Okay, so that processor तभी process कर पाएगा when that voice is getting converted into digital. So there is a device, that device is called as ADC. ADC takes the input in the form of voltages. So हमारे पास 8 चैनल है, 8 चैनल में से किसी एक चैनल पे वो इनपुट लेगा, और उस इनपुट को which is in the form of voltages, it will try to convert into data, and data जो है वो 8 बिट पे आएगा। 8 because it is a 8 bit, so output आपका 8 बिट आएगा। 8 बिट कहाँ पे आएगा? So whatever which is represented in yellow, that is my output. On that particular pin your output will be generated. So 8 पिन है, 8 पिन पे एक बिट का इंफॉर्मेशन आएगा। So your one input which is in the form of analog, it is converted into 8 pins output. 8 pin पे output यानी हर एक पिन पे एक बिट आएगा, तो टोटल बिट कितना हो जाएगा? 8 बिट। That is why this is called as a 8-bit ADC converter. Is it clear now? Is it clear? Yes. Yes. Okay. So in order to select the channel, यानी Sir, हाँ, yes, any doubt? sir, 2 - 1 ms भी आएगा ना? और 2 sorry, my bad, yeah, मैंने गलती से वहाँ पे वो कर दिया। 2 - 1 is MSB, my bad. Okay, 2 - 1 is MSB and 2 - 8 is LSB, my bad. Good point. Okay, so please make it as do that change. 2 - 1 is MSB and 2 - is LSB. गलती में फ्लो में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, so please try to understand it. Okay, done with that part? आगे चले? yes, Okay, so we have got in order to select the channel, so total channel कितना है हमारे पास? 8. Okay, उस 8 में से कौन सा चैनल आपका एक्टिव होगा? So that is being selected by ABC. ABC decides which channel is active. Okay, so let's say yeah, if I make it as 110, that means it is, you are selecting channel 3. Okay, if it is 100, you are selecting channel 1. If it is all zeros, that means you are selecting channel 0. So 3 bit का आपका input होगा. I'll just draw the truth table CBA. Okay, it is in the reverse direction. Don't make it as a ABC. So draw the truth table. So C can be 4 times 0 and 4 times 1s, right? B can be 2 times 0 and 2 times 1. Again 2 times 0, 2 times 1. And A will be 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, tell me the first truth table अगर होगा तो which channel will be selecting? 0, 0. 0, 0, 1 होगा तो channel 1. 1. 0, 1, 0 होगा तो channel 2. 0, 1, 1 होगा तो channel 3. बराबर ना? Just try to convert it into decimal. Automatically समझ में आ जाएगा. So 0, 1, 1 is nothing but 3. What is 1, 0, 0? It is channel 4,
4. 101 is channel 5. 5. 110 is channel 6, and 111 is channel 7. Okay, so on the basis of the respective CBA, we can select whichever channel we are selecting. Okay, just remember the order is not ABC, it is CBA. Okay, it is reverse. Okay, यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है, and इस basis पे आपका थोड़ा marks cut हो जाता है. Okay, there is nothing else जहाँ पे आपकी गलतियां हो सकती है. These are the points where you can do mistake. Okay, so CBA, दूसरा इनपुट जो है आप 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करते हो और 8 तक जाते हो, वहां पे गलती हो सकती है. या 2⁻1 की जगह पे आप 2⁻0 से आप स्टार्ट करते हो and you go to 2⁻7. तो ये कुछ पॉइंट अगर आप याद कर लोगे, ये जो गलतियां हैं, बाकी सब चीज कवर अप हो जाती है. ओके, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि कहाँ पे मेन पॉइंट क्या है. तो सीबीए से आप सेलेक्ट करते हो विच चैनल आर वी वर्किंग ऑन. सो लेट्स से अगर मैं सीबीए पे 110 डालता हूँ, यानी एबीसी पे मैं 110 डालता हूँ. ओके, 110 का मतलब 011. 011 इज नथिंग बट चैनल 3. आई एम एक्टिवेटिंग चैनल 3. यानी जो इनपुट आएगा वो इनपुट आएगा कौन से पिन पे? विच पिन is taking the input right now? Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. It is pin 1. So from pin 1, basically somewhere over here, there is a pin 1 which is channel 3. On that channel 3, I'm taking the input as 25 volt, and I'm just trying to convert that 25 volt into the respective data, into the respective 8-bit data. Okay, is the point clear now? समझ में आ गया? The role of ABC is clear. Yes. Okay, so ABC के बाद after the ABC, what are the other things that we have? We have a clock. So what is the role of clock? Can someone tell me? Clock का एक ही काम है ना हर जगह. What is the role of clock? Provides delay. To trigger the to trigger the IC. So IC को living बनाने के लिए आपको trigger करना पड़ेगा. That triggering is done by the clock. Okay, so it makes all the pin active. So सारे pin को active करने के लिए you have to make it as a clock. You have to provide clock to it. Okay, VCC का मतलब क्या है? What is VCC and ground? It provides power supply. Okay, VCC and ground provides power supply. यानी इस पिन को अगर आपको मतलब alive करना है, जैसे human को alive करना है, you have to give food supply to it. Okay, सिमिलरली अगर इस पिन को अगर आपको जिंदा रखना है तो आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा. उसको पावर सप्लाई हटा दिया तो चीज मर जाएगी, बराबर ना. So that is like we have to give VCC and ground as a power supply. What is then VREF and minus VREF? What is the meaning of it? It will only take input between these reference voltage. इनके बीच में ही जो reference volt होगा आपका, उसके बीच में ही आपका input voltage को ही ये convert करेगा. Okay, so that is a reference voltage. So plus VREF मतलब that is the higher limit and minus is the lower limit. Okay, so उनके बीच में जो भी voltage होगा, it will just try to convert that voltage into the respective data, 8-bit data. Is the point clear? Plus VREF and minus VREF का काम समझ में आ गया? Okay, so basically अगर मैंने plus 5 volt और minus 5 volt का मैंने VREF रखा है. Okay, I've plus 5 volt और minus 5 volt रखा है, and I'm just trying to take an input which is 12 volt. Will it convert it or it will not convert? Will it convert? Will it convert? Am I audible? Yes, sir. It will not convert. It will not convert because जो आपका limit है, that is higher limit is plus 5 volt and the lower limit is minus 5. Okay, it is out of the limit, it is out of the range, so it will not convert it. Okay, so जो भी आप reference volt रखते हो, उस reference volt के बीच में ही आपकी functionality जो होगी वो achieve करके देगा this particular voltage. So you can change the reference volt depending on your requirement. So जो भी आपको voltage में conversion करना है वो आप कर सकते हो. Okay, so that is the role of VREF. and और क्या बच गया? We have output enable. OE का full form, I hope you remember it. You guys remember OE? Yes. Yes. The full form is output enable. Output enable मतलब इस पिन को अगर आपको input मतलब transfer करना है, if you want to transfer the data from this particular IC, जो भी आपका डेटा है जो कन्वर्ट हो चुका है, उस डेटा को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको OE बार को आउटपुट एनेबल करना पड़ेगा. ओके, so that then only it can provides the output. ओके, तभी आउटपुट प्रोवाइड करेगा. else अगर आप आउटपुट एनेबल को ग्राउंड कर दोगे, so it will just convert it but it will not send it. ओके, so yeah, so आउटपुट एनेबल या डिसेबल करने से जो आपका बेसिकली जो आउटपुट है वो जनरेट होगा, और जनरेट तो होगा ही, जनरेट एडीसी करके देगा, बट वो आउटपुट ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब आउटपुट एनेबल आप 1 कर देंगे.
So it is generally it is a doorway. वो door अगर आप close कर दोगे तो you will not able to transfer the data. Door अगर आप open कर दोगे you will able to transfer the data to the other devices. Okay. So OE को अगर आपको interface करना है और अगर वो 8051 को आपको transfer करना है, OE को आपको 1 करना पड़ेगा. Okay. So that is the role of OE. Okay. So we have converted. We have studied about OE. SOC का मतलब full form of SOC is start of conversion. And EOC का full form क्या होगा? What is the opposite of start? Start of conversion. And EOC stand for End of End of end of conversion. conversion. End of conversion. Okay. So SOC is start of conversion. EOC is end of conversion. Okay. Start of conversion मतलब एक बार जो आप sample select कर लेते हो उसका conversion करने के लिए, यानी जो भी आप 25 वोल्ट आपने सेंड किया है उसका स्टार्ट करना है. So you have to tell your ADC start the conversion. Okay. So for telling your ADC to start the conversion, there is SOC. And when ADC informs कि मेरा conversion हो गया है, ADC will send a signal which is called as a EOC कि the conversion has been done now. Okay. So you can collect the data और जो भी आपको डेटा के साथ करना आप वो कर सकते हो. So that is informed by ADC, whereas start of conversion is given by the other devices. अगर उनको कोई भी डेटा चाहिए, for example अगर आपके प्रोसेसर को डेटा चाहिए, okay, प्रोसेसर को डेटा चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो प्रोसेसर को चाहिए वो डेटा, उसको प्रोसेस करना है. So processor will ask the ADC कि start the conversion, whatever I am speaking right now, please try to convert it. Okay. जब ADC आपका कन्वर्ट करके उसका हो जाएगा काम, it will inform the processor कि I've done the conversion, I've done my end of conversion, you can take the data right now. So that is the role of SOC and EOC. Okay, so SOC is start of conversion and EOC is end of conversion. Okay, all this point will get clear when we do with the interfacing also. Interfacing के टाइम पे यही चीज वापस रिपीट होगी. So yeah, so हमने लगभग सारे पिन को कवर कर लिया except for ALE. ALE stand for address latch enable. Address latch enable. एड्रेस लैच एनेबल. बट यहाँ पे एड्रेस लैच एनेबल, यहाँ पे दो एड्रेस नहीं है. We don't have with the address, but we perform a latch. We perform a latching over here. Okay. So address latch enable basically क्या होता है? Latch is nothing but at a particular instant of time. यानी जैसे मैंने बोला आपको, okay, कि इस instant पे whatever is there, just record that point. Okay. For example, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, okay, बाइक चला रहे हो, you're riding a bike. एंड स्पीडोमीटर पे आप बेसिकली स्पीड दिखाते हो, राइट. वहां पे आप दिखाते हो 25 पे चल रहा है, 40 पे चल रहा है, 45 पे चल रहा है, 50 पे चल रहा है. जो भी आपकी गाड़ी की स्पीड होती है दैट इज शोन ऑन द स्पीडोमीटर. बराबर. सो नाउअडेज योर स्पीडोमीटर इज जनरली इन डिजिटल फॉर्मेट. पहले वो एनालॉग के फॉर्म में होता था और वो लाइन आपको दिखती थी वहां पे. अब डिजिटल होने की वजह से आपको एग्जैक्टली आपको स्पीड दिखती है. ओके. सो व्हाट इज इट वर्किंग, हाउ डज इट वर्क्स? There is आपके व्हील के पास there is a device basically which monitors your speed. Okay. And वो सिग्नल से it sends that voltages to your screen, and उस स्क्रीन पे आपको डिजिटली आपको स्पीड दिखाई देता है. Okay. There is a device called as dynamo. Dynamo basically आपके व्हील के पास लगा हुआ रहता है, एंड उस व्हील से आपका सिग्नल लेता है, एंड that is given to your speedometer. So स्पीडोमीटर जो भी आपको स्पीड दिखाता है वो एक इंस्टेंट पे दिखाता है. ओके. इट गिव्स यू ऑन बेसिकली वो तो रियल टाइम दिखाता है, लेकिन रियल टाइम के लिए भी इट बेसिकली वो हर वक्त आपके सिग्नल का सैम्पलिंग करता रहता है. ओके. सो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट, मतलब मैंने बोला ये डायग्राम आपको रिकॉर्ड करना है. ओके. ये पीपीटी आपको रिकॉर्ड करना है. आप फौरन क्या करते हो, प्रिंट स्क्रीन दबा लेते हो या स्क्रीनशॉट ले लेते हो उसका, राइट, इफ यू वांट टू होल्ड दैट रिकॉर्ड. अगर आपने नहीं किया तो मैं इस डायग्राम में कुछ भी चेंज कर दूंगा. सो इफ आई मेक समथिंग एनीथिंग ऑन द डायग्राम, सो नेक्स्ट टाइम देयर विल बी अ चेंज इन दिस डायग्राम, राइट ना. सो एड्रेस लैच एनेबल भी वही करता है. वो क्या करता है कि सिग्नल बिफोर चेंजिंग हैपनिंग ऑन टू दिस सिग्नल, वो वही डेटा जिसको प्रोसेस करना है उस डेटा को लैच कर लेगा. इट विल स्टोर दैट डेटा. ओके. व्हाई? सो दैट आगे इस डेटा पे चेंज ना हो, और उसका इस डेटा का मैं डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट करता हूँ. इज द पॉइंट क्लियर? ALE का रोल समझ में आपको? So it is kind of screenshot you're taking. So what is the role of screenshot taking? What is the need of taking the screenshot? ताकि मैं उस particular PPT के अंदर कुछ change ना करता हूँ. वो आपका instant उस particular moment के लिए that is your data that is required. Okay. अगर मैं उसके अंदर let's say अगर मैं इस diagram पे पूरा cross मार दूँ तो आपका पूरा data बिगड़ जाएगा, right? So you don't want that data to get destroyed. Okay. So ALE क्या करता है, उस particular moment पे जिसको data को आपको convert करना है
उस डेटा को, उस वोल्टेज को ये लैच कर लेता है. एंड हाउ इट डज दैट? विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर. सो कैपेसिटर अगर आपको याद होगा BEE में, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच बेसिकली स्टोर्स योर वोल्टेज. सो डायनामो क्या करता है? इट बेसिकली काउंट्स, वो चेक करता है कि कितना रोटेशन हो रहा है, उस रोटेशन को कन्वर्ट करता है इनटू वोल्टेजेस, और वो वोल्टेजेस किसको प्रोवाइड करता है? कैपेसिटर को. कैपेसिटर के पास जैसे ही वो वोल्टेज आया, it provides that voltage to your ADC. ADC converts into digital. Digital then is shown on your speedometer. So speedometer पे जो आपको दिखता है, that is taken from a capacitor. Capacitor is basically recording or sampling at a given instant of time. Okay. दो आपका प्रोसेसर इतना फास्ट होता है कि वो आपको नेकेड आई को आपको ऐसा लगता है कि इट इज ऑल हैपनिंग ऑन द रियल टाइम, बट एक्चुअली देयर इज कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग इज बीइंग डन, और वो इतने फास्ट पेस पे होता है कि मतलब वो नेकेड आई को समझ में नहीं आता कि बेसिकली प्रोसेसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो व्हेनेवर यू गिव a throttle to your bike, automatically वो change होता जाता है कि आपकी स्पीड क्या चल रही है. Okay, but there is a lot of processing happening at the back end. Is it clear now? What is the role of ALE? ALE का रोल समझ में आया? Yes, sir. ओके. अगर एक और चीज समझाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वोल्टेज है, वोल्टेज इज बेसिकली साइनसॉइडल. मैंने बोला ये पॉइंट पे आपको इसका डेटा क्या है, इसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपको फाइंड करना है. आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे. अगर इससे लेट हो गए आप, तो क्या होगा? आप यहाँ पे पहुंच जाओगे और यहाँ का डेटा विल बी डिफरेंट. सो इन ऑर्डर टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इन ऑर्डर टू स्टोर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर मोमेंट अगर आपको स्टोर करना है, दैट मोमेंट इज स्टोर्ड बाय ALE. ALE इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंट which will just record for that particular instant. वो instant पे आपका जो भी voltage होगा उस चीज को record करेगा into capacitor so that you don't lose that data. Okay, and once it is get converted, once it stores it, वो किसी एक चैनल पे डाल देगा, जो भी चैनल एक्टिव होगा वो चैनल पे डेटा पहुंचते ही it will get converted into 8-bit data. Is it clear? Yes. So that is the working of 28 pin. I hope it is clear to you. I'll just quickly give a replay of it. क्या क्या हमने कवर किया है. So total how many channels are there? Just tell me the count. 8. 8 channels. These 8 channels take input or take gives output. What does this channel do? Take input. Input are generally in the form of what? Voltage or Voltage. data? Voltage. Input are generally in the form of voltage. Okay. Data are generated on which pin? From where to where? Data are 2 raised to generated minus 1. 2 raised to minus 1 to 2 raised to minus 8. Okay, so how many bits are of data generated for each voltage? 8 bit. 8 bit. Okay, LSB is represented on which bit? 2 raised to minus 2 8. raised to 2 raised to minus 8. MSB is represented on which pin? 2 raised to 2 raised to minus 1. minus 1. Okay, what is clock used for? What is the use of clock? To trigger. To trigger your IC. To trigger your IC. Okay, what is the use of ground and VCC? Ground and VCC is generally given for power supply. Power supply. What is the role of plus VRF and minus VRF? Range of Upper and lower voltage. input. The higher limit and the lower limit of the voltages. Okay, that is given by plus VRF and minus VRF. Okay, और कुछ बच गया. हाँ, OE. What is the role of OE? It enables whether you want to transfer the output or you don't want to transfer the output. So that is OE. What is SOC and DOC? Start of conversion, end of conversion. End of conversion. ALE is Address latch. Address latch and address latch enable. Used for what? Recording the voltage at that particular instant. Okay, उस instant पे, उस moment पे voltage को record करने के लिए we use ALE. ALE record कहाँ पे करता है? How? What does it use in order to record it? What does it use to record the voltage? There is a device called as Capacitor. capacitor. There is a device which is called as a capacitor. Capacitor holds the voltage, and further जो भी channel active होगा उस channel पे आप voltage provide करोगे with the help of that capacitor, and वो capacitor से जो आपका channel पे आएगा वो channel पे आप SAA algorithm. Do you guys remember the full form SAA algorithm? There is an algorithm called as SAA. It is called as successive approximation algorithm. Okay, using this algorithm, it basically converts your analog to digital, and this digital are represented on the digital pins. Is the point clear? Can we go to the interfacing part? Yeah. Is the IC clear? yes. Okay.
So we'll quickly go to the next diagram. The next diagram is basically our interfacing diagram. So quickly draw the diagram. Quickly draw the diagram, and I'll start the explaining part. Take a 2-minute time. The diagram is important, okay? Diagram is important. What are the questions? Please put down the heading also. Interfacing of ADC with 8051. Okay, so what is the question that they can ask? Write a program to perform interfacing of ADC with 8051. ये क्वेश्चन प्रोग्राम के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो उस केस में भी आपको डायग्राम बनाना है, या थियरी केसेस में भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा. ओके, सो बोथ द थिंग यू हैव टू राइट डाउन. ओके, आई प्रोग्राम प्लस डायग्राम. Done with the diagram? Okay, as you can see, we have got two IC over here. One is 8051, which is your microcontroller, and we have 0809, which is your ADC. Okay, so just count the pin that we are having. What are the pins that we have? VREF and minus VREF यहाँ पे है. Okay, that is the reference voltage that we have. So दो pin हो गया, दो supply के लिए हो गया. So कितना हो गया? 4 ground and VCC 4 हो गया. Data के लिए 8 8 4 12. Output enable 12 के बाद 13. TOC 14, SOC 15, ALE 16, CBA is 16, 17, 18, 19, 19, 19 plus 8 channel. 19 plus 8 is how much? 19 plus 8 is 27. And then we require a clock. Okay, so 28 pins. So total 28 pin है, and इस diagram में सारे pin है except for 3 pins. One is power supply, ground and clock. वो accepted है कि आप कहीं ना कहीं वो pin को connect कर पाओगे, and it is there. It is generally connected in all the different IC that we have. Okay, so should we start with the explanation? Can I start? Yes. Okay. So the question is the interfacing of 8051 with ADC, which is analog to digital conversion. Okay, so that is the question, and जनरली प्रोग्राम जो है, आपको सवाल जो है वो कुछ इस फॉर्म में पूछा जा सकता है आपको. जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. राइट अ प्रोग्राम to read 10 sample from channel number 5. Channel number 5. Write a program to read 10 sample from channel number 5 and store them in the internal RAM of 8051 and store them in the internal RAM of 8051 from the location 30 onwards. Okay, समझ में आया सवाल? Is the question clear? Just read it once and I will explain the question again. So what is there in the question? Can someone read it? क्या बोला गया है आपको प्रोग्राम लिखने के लिए? किसके ऊपर?
इनपुट 10 कहाँ से आ रहा samples. है? इनपुट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? Channel number 5. Channel Channel 5. number 5. So input is coming from V in and the channel that we are talking about is channel number 5. So यहाँ से आप input ले रहे हो, कितना input ले रहे हो, कितना sample ले रहे हो? How many samples you are taking? 10. You are taking 10 samples. Okay, so that means 10 बार आपको ये इनपुट को लेकर के आपको डेटा में कन्वर्ट करना है, 10 वोल्टेज लेना है एंड इसको 10 डेटा में कन्वर्ट करना है. ओके, सो हु हैज टू टेक इनपुट? 8051 इनपुट लेगा या एडीसी इनपुट लेगा? Who will take the input? ADC. ADC. Who will generate the output? 8051 generate करेगा या ADC generate करेगा output? Who will generate the output? ADC ही output generate करेगा. The role of 8051 is just to store that data. जो भी generate हुआ है उस data को store करना है. Okay? So 10 input लोगे आप from channel number 5 और उस 10 input का आप 10 data generate करोगे. You will generate 10 8-bit डेटा, यानी टोटल कितना जनरेट करोगे आप? 80 बिट ऑफ डेटा. ओके, और उसको आप स्टोर करोगे इनटू 8051. तो 8051 में कहां स्टोर करोगे? इनटू इंटरनल रैम. इंटरनल रैम के अंदर आप स्टोर करोगे. कहां से? फ्रॉम 30 लोकेशन से आप स्टोर करना चालू करोगे. कहां तक जाओगे? 30 पे पहले आप स्टोर करोगे, दूसरा 8 बिट डेटा 31 पे स्टोर करोगे, फिर 32 पे स्टोर करोगे. कहां तक जाओगे आप? फ्रॉम 32 वेयर? व्हाट इज द लास्ट लोकेशन वेयर यू विल बी स्टोरिंग? 39. 39 बराबर ना. फर्स्ट डेटा आया जो आपका 8 बिट का, वो 30 पे गया. सेकंड आया वो कहां पे गया? 31 पे. थर्ड आया वो 32 पे गया. फोर्थ आया 33 पे. फिफ्थ 35 पे. 6 36 पे. ऐसा करते हुए लास्ट जो डेटा है आपका 10, दैट विल गो ऑन व्हिच एड्रेस? कहां पे जाएगा? 39 पे ही ना. Yes. ओके, इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया आपको? सो द रोल ऑफ 8051 इज जस्ट टू टेक द इनपुट. ओके, सो जो भी आपका आउटपुट जनरेट हुआ है उस आउटपुट को लेकर के इनपुट के फॉर्म में लेकर के आपके रैम में स्टोर करना. दैट इज द रोल ऑफ 8051. बाकी उसका कुछ काम नहीं है. ओके, सो यू आर जस्ट इंटरफेसिंग योर एडीसी एंड एडीसी से जो भी आपका प्रोसेस फॉर्म में डेटा है उस डेटा को लेकर के आपके रैम तक पहुंचाना. दैट इज द रोल. दैट इज ऑल यू वांटेड टू. So should we start explaining what is drawn over here? Should we start it? Yes. Okay. So what is the first thing required? Directly data ले लोगे या पहले channel select करोगे? What is the first thing that you do? Channels. Channel select. Which channel are we talking about? Channel 1, channel 2, channel 3, channel 0, channel 5, Five. channel 7, channel 5. So what should be the content of ABC? ABC पे क्या content होना चाहिए? Can you tell me as per the truth table? 101. C should be 1, B should be 0 and A should be 1. बराबर ना? 101. So who selects that channel? Channel select कौन करेगा? आपका प्रोसेसर सेलेक्ट करेगा. ओके, सो प्रोसेसर सेलेक्ट करेगा कि मुझे उस चैनल पे क्या डालना है. और जो भी प्रोसेसर सेलेक्ट करेगा आपका एडीसी विल टेक दैट चैनल इनटू एन अकाउंट एंड उसके ऊपर डेटा लेगा. ओके, सो प्रोसेसर फ्रॉम पोर्ट 2.2, फ्रॉम पोर्ट 2.1 एंड फ्रॉम पोर्ट 2.0 उस पर्टिकुलर पिन से इट विल सेंड 101 एंड वो 101 CBA से कनेक्ट होने की वजह से CBA आपका 101 बन जाएगा. As soon as CBA becomes 1, it will identify VIN या channel number 5 as your default channel. Okay, उस चैनल को डिफॉल्ट चैनल बना देगा और उस चैनल पे जो भी इनपुट आएगा that will be taken as your input voltage and it will try to convert into data. Is the point clear? First step समझ में आ गया? What is the first thing that you need to do? ये जो आपका चैनल है वो चैनल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड ये चैनल सेलेक्ट करने के लिए आपको 8051 के अंदर पोर्ट 2.2, पोर्ट 2.1 एंड पोर्ट 2.0 पे आपको 101 पास करना पड़ेगा. इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? Yes. ओके, सो वंस चैनल हैज बीन सिलेक्टेड, अब क्या हो रहा है? Vin पे आपका वोल्टेज है, वोल्टेज आ गया. ओके, Vin पे वोल्टेज जो आ रहा है, दैट वोल्टेज दैट इज कमिंग ऑन Vin, इज इट कंटिन्यू आ रहा है या एक ही वोल्ट आप ले रहे हो? व्हाट यू आर टेकिंग? इट इज कमिंग एज कंटिन्यूअस, राइट? बिकॉज इट इज वोल्टेज. बराबर. आपको क्या करना है? एक मोमेंट पे आपको कैप्चर करना है. हु डज दैट? हु कैप्चर्स दैट वोल्टेज? ALE. ALE. सो आपको ALE को क्या करना पड़ेगा? कैप्चर करने के लिए आपको ALE को स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ALE को 1 करना पड़ेगा एंड उसी मोमेंट पे आपको उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा. ओके, सो जितना डिले लेता है, ओके, व्हाटएवर इज दैट डिले, इन डिले में जो भी वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी कैप्चर्ड. इज द पॉइंट क्लियर? सो आपने इसको स्टार्ट करके स्टॉप क्यों किया? स्टार्ट करने से लेके स्टॉप करने के बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में व्हाटएवर इज द वोल्टेज व्हिच इज रिकॉर्डेड इन योर कैपेसिटर, दैट voltage is captured basically. That is the sample that you have captured. Is the point clear?
सो यू आर टेकिंग ए स्क्रीनशॉट बेसिकली, आपने वहां पे उस मोमेंट पे स्क्रीनशॉट ले लिया। सो ALE क्या किया, आपने उस P3.0 को पहले 1 किया और फौरन उसको 0 भी कर दिया। आपने क्यों किया 1 से 0? ताकि उस मोमेंट पे जो भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज आपके कैपेसिटर को चार्ज कर दे, एंड उस चार्जिंग उस क्या वोल्टेज को लेकर के आप उसको कन्वर्ट कर सको इनटू डेटा। इज अ पॉइंट क्लियर? ALE का रोल समझ में आया आपको? So ALE is just acting as a screenshot button. Okay, so अगर आप उसको प्रेस करोगे, so उस मोमेंट पे जो भी वोल्टेज होगा, that voltage is captured. So for capturing your voltage, you have to make your ALE, you have to enable your ALE, and as soon as it enables, you have to disable it also. वरना वो कैपेसिटर will keep on overriding. आपको उसको स्टॉप भी करना है। एक बार चार्जिंग होने के बाद वो कंटिन्यूअसली चार्ज करते रहना नहीं चाहिए, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जैसे वो स्टॉप हो जाएगा, आपका जो भी वैल्यू कैपेसिटर में होगा वो वैल्यू विल बी टेकन एज द फर्स्ट इनपुट, वो वैल्यू फर्स्ट इनपुट हो जाएगा। इज इट पॉइंट क्लियर? इज इट पॉइंट क्लियर? समझ में आया आपको ये पॉइंट? ALE का रोल समझ में आ रहा है आपको एग्जैक्टली? Yes. डू यू वांट मी टू एलैबोरेट इट ऑन इट? डू यू वांट मी टू एलैबोरेट, या समझ में आ गया? Repeat, sir. Okay, so ALE is something like this, क्योंकि आपका जो सिग्नल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल, राइट? आपका जो वोल्टेज है वो साइनसॉइडल है। मैंने आपको क्या बोला, आपको 10 सैंपल लेना है। 10 सैंपल लेना है, यानी एक सैंपल ये हो गया, दूसरा सैंपल ये हो गया, तीसरा सैंपल ये हो गया, चौथा सैंपल ये हो गया, पांचवा सैंपल ये हो गया, छठा सैंपल ये, सातवां सैंपल ये, आठवां सैंपल ये, नौवां सैंपल ये, एंड 10वां सैंपल ये। इस 10 मोमेंट पे आपको जो भी ये वैल्यू है, व्हाटएवर इज दैट वैल्यू, दिस वैल्यू, ये वैल्यू का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको आपको कैप्चर करना है एंड उसको स्टोर करना है 8051 में। इन ऑर्डर टू कैप्चर दिस मोमेंट, ये मोमेंट को कैप्चर करने के लिए नॉर्मली आप क्या करते हो, कोई भी आपका मोमेंट अगर आपको कैप्चर करना, आप क्या करते हो, कैमरा ऑन करते हो, आप क्लिक कर देते हो, राइट? एज सुन एज यू क्लिक, आपका एक मोमेंट, एक सेकंड नहीं भी नहीं है, दैट इज 1 मिली सेकेंड का जो भी आपका मोमेंट है वो मोमेंट आपका कैप्चर हो जाता है, राइट? तो सिमिलरली आपका जो ADC कन्वर्टर है, ADC कन्वर्टर क्या है, बिकॉज द सिग्नल इज ऑल्सो लिविंग लाइक यू, आप भी जैसे एक मूवमेंट में रहते हो, आप एक कंटिन्यूअस फ्लो में रहते हो, सिग्नल इज ऑल्सो इन दैट वे। ओके, सिग्नल भी जो एक साइनसॉइडल वेव फॉलो कर रहा है। ओके, अगर आपको एक मोमेंट पे कैप्चर करना है, ओके, सो ALE इज द बटन, ऑन प्रेसिंग दैट बटन, ये मोमेंट पे आपका जो भी वैल्यू था, दैट वैल्यू इज कैप्चर्ड इनटू अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या करता है, वो चार्ज कर लेता है, एंड लेट्स से इस मोमेंट पे इट वाज 2.7 वोल्ट वोल्टेज आपने कैप्चर कर लिया। अब ये क्या करेगा, इस 2.7 वोल्ट को इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सो 0 1 0 1 1 0 0 0, सो ऐसा कुछ डेटा इसको कन्वर्ट करेगा। इज इट पॉइंट क्लियर? ये कौन करता है कैप्चर? ALE कैप्चर्स दैट। कहां पे कैप्चर करता है? इनटू अ कैपेसिटर। इज इट पॉइंट क्लियर नाउ? Yes. ओके, सो ALE को आपको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, जैसे कैमरा पे हम क्लिक करते हैं, ALE को एनेबल करने के लिए आपको उसको 1 करना पड़ेगा, फिर उसको 0 करना पड़ेगा। तो सर स्टार्ट में, हाँ, यस यस 0. सर ALE एक पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज कैप्चर करता है ना? एग्जैक्टली, हाँ। पर यहाँ तो अपने जो सैंपल्स है वो बाकी का रेशियो सर, बाकी का जो सैंपल्स है वो सर बीच में एक पर्टिकुलर। हाँ, तो वो हम लोग लूप में डालेंगे ना। अभी तो मैं एक का पहले बताऊंगा, फिर आगे का कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं। तो सर एक सैंपल का वोल्टेज कैप्चर करने के बाद जो नेक्स्ट में जो हाँ उनका सर, हाँ, तो वही ना, वो मैं अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक सैंपल के लिए है। इसको आप 10 बार करोगे तो आपका 10 सैंपल आ जाएगा, तो इसको लूप में डालना पड़ेगा। वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर ओनली 1 सैंपल। ओके, हाँ सर। ओके, सो बेसिकली जो पॉइंट है वो बराबर है कि एक सैंपल तो इसने कर लिया, अगली बार क्या करना पड़ेगा, अगली बार फिर से सैंपल लेना पड़ेगा। अगर मैंने आपको बोला 10 फोटो खींचो, तो आप क्या करोगे, एक बार क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे, 3 बार क्लिक करोगे, ऐसे 10 बार क्लिक करोगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ALE को 10 बार आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन ऑन ऑफ करके बाद उसका आपको प्रोसेसिंग भी तो करना है ना। तो पहले एक फोटो खींचोगे, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करोगे, फिर दूसरा फोटो खींचो, फिर उस पर प्रोसेसिंग करोगे, यानी यही स्टेप आपको 10 बार रिपीट करना है। व्हाटएवर आई एम टेकिंग, यू हैव टू रिपीट दैट स्टेप 10 टाइम्स। ओके, सो वो रिपीट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आई जस्ट टेलिंग यू द फ्लो ऑफ इट। एक बार इतना समझ में आएगा, व्हेन वी गो टू द प्रोग्राम यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू अप्लाई इट फॉर द 10 डिफरेंट टाइम्स। इज इट क्लियर राइट नाउ? अभी ALE का रोल समझ में आपको? यस सर। Okay, so ALE captures for that particular moment, it will capture that signal. अब SOC क्या है? What is the role of SOC? Can someone tell me what is the time exactly? 240. हाँ, तो 12 मिनट है ना हमारे पास। Okay.
हाँ सो क्या था मैं, हाँ एसओसी क्या करेगा, व्हाट डज एसओसी डू, वंस द कैप्चरिंग इज बीन डन, ओके, एक बार कैप्चर हो गया, ओके, यानी आपका कैपेसिटर ने उस सैंपल पॉइंट पे डेटा कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब वो क्या कर सकता है, एडीसी कैन स्टार्ट फॉर द कन्वर्जन, राइट, एसओसी मतलब उसके पास सैंपल आ चुका है, वो स्टार्ट कर सकता है, राइट, राइट. So your processor will tell कि please start your conversion, okay, because you have, मैंने ALE आपको प्रोवाइड कर दिया, उस मोमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया ये मोमेंट आपको पिक्चर क्लिक करना है, मैंने क्लिक करके आपको दे दिया, अब आप स्टार्ट कर दो आपके कन्वर्जन को, ओके. सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर देयर, जस्ट छोटा सा मिस्टेक, या. सो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, यू विल प्रोवाइड जस्ट वन, इस सिग्नल पे आप वन प्रोवाइड करोगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वन प्रोवाइड करते ही आप ADC को बोलोगे स्टार्ट योर कन्वर्जन, ओके. इज द पॉइंट क्लियर. एसओसी क्या है, एसओसी विल इन्फॉर्म, मैंने आपको मोमेंट बता दिया किस मोमेंट को आपको कैप्चर करना है, बाय मेकिंग योर ALE एज 1 and 0, ओके. यू हैव कलेक्टेड दैट वोल्टेज इन योर कैपेसिटर, ओके. नाउ प्रोसेसर विल टेल, जो भी आपने कैपेसिटर में कलेक्ट कर लिया है, प्लीज स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ इट. सो हाउ इट विल इन्फॉर्म, बाय मेकिंग एसओसी इज 1. इज द पॉइंट क्लियर, इज द पॉइंट क्लियर, इज द पॉइंट क्लियर. Yes, sir. ओके, ALE क्या है, ALE क्यों यूज किया हमने, इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए. वी हैव कैप्चर्ड दिस पर्टिकुलर मोमेंट इनटू आवर कैपेसिटर. who helped to capture that moment, cameraman, right? In our case, who is the cameraman, 8051 is the cameraman. He's the person who's capturing that moment, okay. उसको वो डेटा चाहिए ना, so वो बोलेगा ये मोमेंट पे मुझे कैप्चर करना है. He has captured that moment, okay. After capturing that moment, now उसको पता चल गया, उसने कैप्चर करके आपको प्रोवाइड कर दिया. Now processor is telling your ADC convert your input signal into data signal, your output signal. So convert your analog signal into a digital data, okay. So in order to inform your ADC कि आप start करो अपना conversion, it is informed by making P3.1 पे 1 पास करते ही आपका SOC 1 हो जाएगा. As soon as SOC will become 1, your 0809 यानी ADC converter will start the conversion process. So यानी जो आपका वोल्टेज था, उस वोल्टेज को ये डेटा में कन्वर्ट करना चालू कर देगा. Is the point clear now? Yes. Okay. So SOC कन्वर्ट करना चालू कर देगा. It will use an algorithm, special algorithm. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, that special algorithm is called as successive. What is the full form? Successive approximation algorithm. Okay, so that is an algorithm which it uses. Why to use that algorithm? In order to take any voltage and in order to convert that voltage into data. So data में convert करने के लिए कुछ algorithm use होता है, and वो algorithm को हम successive approximation algorithm बोलते हैं. Is the point clear? So it uses that algorithm, it converts it. As soon as its conversion is over, जैसे इसके सारे conversion हो जाएंगे, यानी एक voltage से वो 8 bit data में convert कर देता है. We are talking about only single sample. We are not talking about all the 10 samples. I'm talking about only single sample. एक sample को जैसे वो 8 bit में convert कर देता है, after converting it, it will inform your 8051 by putting 1 over here. So ये क्या करेगा, 1 pass कर देगा यहाँ पे. Who will pass that 1? Who will pass that 1? Your ADC. ADC will inform your processor कि I've completed my conversion. Now you can accept the data. Is the point clear now? Is the point clear? Yes, sir. सर 1 पास करेगा या 0 पास करेगा? EOC will pass 1. EOC will pass 1. Why 1? Why 1? Because end of conversion तभी possible है जब उस पिन पे 1 आएगा. 1 आते ही वो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे conversion हो चुका है. Now it is ready to accept the data. Who is ready to accept the data? Your processor is ready to accept the data. Okay? प्रोसेसर को एक्सेप्ट करना है, प्रोसेसर को डेटा लेना है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, OE को 1 करना पड़ेगा या 0 करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द डेटा. आउटपुट एनेबल करना पड़ेगा या डिसेबल करना पड़ेगा. In order to accept the data, what you should do? Enable. So you'll pass 1 over here. You'll pass 1 over here. As soon as output is enabled, आपका door जो है वो open हो जाएगा, and whatever is the data which has been produced, it can come into your processor. So कहाँ से आएगा? Where is the data is being processed? Data कहाँ पे produce हो रहा है? In ADC 2 - 1 to 2 raised to -8. बराबर ना? यहाँ पे data produce हो रहा है. बराबर.
From there it is transferred to a port which is called as P1. P1 पे डेटा आपका ट्रांसफर हो चुका है. So वो 8 बिट का डेटा has been transferred from P1.0 से लेके P1.7 तक वो सारे डेटा आपके कनेक्ट होंगे और वो रिस्पेक्टिव पोर्ट पे आ जाएंगे. From that port you can transfer it into your accumulator. Okay, आप accumulator में ले सकते हो, and from accumulator you have to transfer it into a location called as 30. Is the point clear? I'll repeat again the whole process. सबसे पहला क्या करना है, आपको चैनल सेलेक्ट करना है. Once the channel has been selected, आपको पता चल गया आपका कौन सा चैनल एक्टिव है. कौन कितने चैनल है टोटल? 8 चैनल. 8 चैनल में से कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन ABC. ABC को कंट्रोल करने के लिए वी हैव गॉट P2.0, P2.1, P2.2. सो उसको आप जो भी 101 करोगे, जो भी करना है आपको, उस बेसिस पे आपका चैनल सेलेक्ट हो जाएगा. वंस चैनल इज बीन सेलेक्टेड, अब आपका प्रोसेसर को आपको बताना है कि कौन कौन सा सैंपल उसको कलेक्ट करना है. सो फॉर सिलेक्टिंग दैट सैंपल, इट विल एनेबल योर एड्रेस लैच enable. It will enable and it will disable it for capturing that moment. So ALE को आपको 1 और 0 करना पड़ेगा. Okay, ALE 1 और 0 कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा. Okay, उसके बाद as soon as it captures that moment, आपको conversion start करना पड़ेगा. So who informs when to start the conversion? Processor informs your ADC to start the conversion. As soon as SOC 1 हो जाएगा, your ADC will start the conversion process with the help of an algorithm. That algorithm is called as successive approximation algorithm. वो कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा, वोल्टेज को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा. एज सून एज द कन्वर्जन इज डन, इट विल इन्फॉर्म द प्रोसेसर बाय मेकिंग EOC एज 1. EOC को 1 बनाते ही और प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि कन्वर्जन हैज बीन डन राइट नाउ. ओके, एज सून एज द कन्वर्जन इज बीन डन, प्रोसेसर विल मेक आउटपुट एनेबल एज 1. आउटपुट एनेबल को 1 कर देगा. व्हाई? बिकॉज आउटपुट एनेबल 1 होते ही आपका जो ADC से जो भी डेटा था, दैट यू कैन ट्रांसफर इट इनटू योर प्रोसेसर. सो वो आउटपुट एनेबल को 1 कर देगा. As soon as output enable has been made as 1, whatever is the data which is generated on the respective data pins, that data pins जो data था, it has been transferred to the respective port. And वो port पे आते ही आप उसको accumulator में ले सकते हैं, and accumulator से आप internal RAM में डाल सकते हैं. Is the point clear? Is it clear? Yes, sir. So that is the whole thing. That is the whole idea behind the transfer. Now we'll try to write down the program for it. Okay, इसका program हम लिखने की कोशिश करते हैं. Okay, yeah. So yeah, what is the program? How to write down the program? So first thing, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? What is the first thing that we need to do? is पहले तो हमें जितने भी ports use हो रहे हैं, tell me what are the ports that is being used. पोर्ट 1 पे हमारा क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है, बराबर ना? पोर्ट 1 पे डेटा आ रहा है, सो पोर्ट 1 यूज हो रहा है. पोर्ट 2 पे हम लोग चैनल का प्रोवाइड कर रहे हैं. व्हाट आर द चैनल्स दैट वी हैव? तो पोर्ट 2 हम आउटपुट दे रहे हैं. पोर्ट 3 पे भी हमारा आउटपुट जा रहा है. इनपुट पोर्ट कौन कौन सा यूज हो रहा है? पोर्ट 1 एंड पोर्ट 0, राइट? व्हिच आर द पोर्ट्स व्हिच इज यूज्ड एज इनपुट पोर्ट? इनपुट पोर्ट मतलब प्रोसेसर के अंदर इनपुट कौन से पोर्ट से आ रहा है? Which are the ports which is acting as an input port? P1 and P0. P1 and P0 are the input port. Okay, so by default सारे पोर्ट जो होते हैं, by default सारे पोर्ट जो होते हैं वो आउटपुट पोर्ट होते हैं. Every port which is, how many ports we have in 8051? How many ports we have in 8051? 4 ports which are P0, P1, P2 and P3. यानी 4 पोर्ट है और ये चारों पोर्ट by default क्या है? आउटपुट पोर्ट. Okay, अगर इनको इनपुट पोर्ट बनाना है, इफ यू वांट टू मेक इट एज इनपुट पोर्ट, उस पोर्ट पे आपको FF पास करना पड़ेगा, यानी आपको सारे पिन को 1 बनाना पड़ेगा. इज पॉइंट क्लियर? बाय मेकिंग एज 1, नाउ इट विल बी एक्टिंग एज इनपुट पोर्ट. इज पॉइंट क्लियर? इज पॉइंट क्लियर? इन ऑर्डर टू मेक इट एज इनपुट पोर्ट, पहले आपको वहां पे 1 पास करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक दैट पिन एज 1. सारे पोर्ट को आपको 1 करना पड़ेगा. इन ऑर्डर टू मेक ऑल द पोर्ट एज 1, यू हैव टू पास FF टू दैट पर्टिकुलर पोर्ट. इज द पॉइंट क्लियर? Is the point clear? Yes, sir. Okay. So सबसे पहले हमें क्या करना है? First of all, what as per our question, what is the requirement is done कि आपको कितना डेटा ट्रांसफर करना है? How many data you want to transfer? Can someone tell me? As per the question, how many data I want to transfer? 10 samples. How many? 10. 10 records have to transfer. So मैं क्या करूंगा? I'll move in my R7. R7 क्या होगा? एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर के अंदर मैं अपना काउंटर को स्टोर करूंगा. ओके, और हर टाइम ये काउंट डिक्रीमेंट होगा. जब एक सैंपल ट्रांसफर हो जाएगा तो वो 10 से 9 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा, 6. ये कब तक चलेगा? जब तक R7 0 ना हो जाए.
Okay, so what should I load into R7? What is the count that I want to load into R7? Can someone tell me? R7 में क्या load करना पड़ेगा? How many data you want to transfer? What should be the count over here? 10. 10. So directly 10 or hash 10? Has 10. It should be hash 10h. ये क्यों लिखा हमने? For storing the count or loading the count. Is the point clear? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? Yes. ओके अब हमने ये कर दिया. अब हम क्या करेंगे? R0 we have to use R0 and हम पहला एड्रेस हम डालेंगे R0 के अंदर. ओके जहां पे इंटरनल रैम के अंदर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है. ओके दिस आर द मैंडेटरी थिंग जहां पे आपको कहां पे डेटा ट्रांसफर करना है, व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे आपको डेटा ट्रांसफर करना है. स्टार्टिंग एड्रेस वेयर यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा. फ्रॉम वेयर ऑनवर्ड्स योर डेटा हैज टू बी स्टोर्ड. कहां पे स्टोर करना है आपको? 30h. Okay, so you want to store at the 30h location. So I'm storing the data 30h. Okay, by using indirect addressing mode @ अगर मैं use करूंगा तो I can direct addressing mode तो मैं @R0 use करके I can increment R0 by 111. So अगली बार वो 31 पे स्टोर करेगा, फिर वो 31 पे स्टोर करेगा और मैं indirect addressing mode को use कर पाऊंगा, direct addressing mode को use कर पाऊंगा. So that is why I'm just storing 30h data into R0. ये 30h is not the data, it is address. But I want to make it as a data so that I can refer it through direct addressing mode. Is the point clear why I'm putting 30h into R0? Yes. Okay, because right now it is data, but I want to refer it as an address. अगर ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to use indirect addressing mode. Indirect addressing mode में क्या लिखोगे आप? Move @R0. So @R0 में मतलब क्या हो गया? You're not storing the data at 30h. But you're storing, you're not storing the data 30h, but you're storing at the location 30h. Okay, so that is why we have just write down. हमने क्या किया है? 30h डेटा को R0 में डाला है. Okay, so फिलहाल ये दो पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ये दिस इज द थिंग जो आप इनिशियली लिखते हो. ओके सो उसके बाद दो पोर्ट को मुझे इनपुट पोर्ट बनाना है. सो व्हिच आर द पोर्ट आई हैव टू मेक इनपुट पोर्ट एज पर द डायग्राम? P1, P0. P1 एंड P0. सो P1 को और P0 को मुझे क्या करना पड़ेगा? इनपुट पोर्ट बनाना पड़ेगा. सो उसके अंदर क्या डेटा मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट एज इनपुट पोर्ट? हैश. व्हाट डेटा आई वांट टू ट्रांसफर? FFH. FFH डालने से ये मेरा इनपुट पोर्ट एक्ट करेगा, वरना अगर मैं कुछ नहीं डालूंगा तो इट विल बाय डिफॉल्ट एक्ट एज अ आउटपुट पोर्ट. इन ऑर्डर टू मेक एज अ इनपुट पोर्ट आई हैव टू पास FFH into port 0 और port 1 के अंदर FFH मुझे पास करना पड़ेगा. Is the point clear? What is the role of this two instruction in order to make P1 and P0? P1 and P0 as which port? Input. or output? Input port. Input port. Is the point clear? ये दो लाइन समझ में आ गया आपको? किसने लिखा आपने? Is this line clear? Yes. Okay, so these are your initial steps. ये आपको initially करना है. अब आपका main program यहाँ से start होगा. Okay, so I'll write on the main program. I'm just writing a label and that label is called as back. Okay, ये क्या है ये बाद में समझेगा, इस पे आप ध्यान मत दो. आप पहली चीज क्या करोगे? What is the first thing that you need to do? is जितने भी आपके control signals है, okay, whatever the control signals that you are using, basically this signal, this signal, this signal, okay, whatever is the control signal, make clear all those signals. by default उसको clear कर दो. first of all उसको use करने से पहले सारे signals को clear कर दो. so which signal are we clearing? कौन कौन से पिन को आपको क्लियर करना है? so how to clear it? the instruction is CLR. कौन कौन से पिन को आपको क्लियर करना है? can we? ALE. ALE is which one? P3 point? P3.0. P3.0. okay, so by doing this you are clearing your latch. उसके बाद और किसको क्लियर करना है? P3.1. P3.1 को your start of conversion P3.1 को आपको क्लियर करना है, यानी इसको 0 करना है. सॉरी, P3.1 my mistake. और फिर किसको करना है? और किसको करना है? P3.2 which is your output enable. उसको भी आपको क्लियर करना है. ओके सो ये क्लियर करने से आपका लैच 0 हो चुका है, आपका स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन 0 हो चुका है, आपका आउटपुट एनेबल 0 हो चुका है. ओके सो ये आपने इनिशियली कर लिया. ओके आफ्टर डूइंग दिस सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? ये तो आपने इनिशियली इसलिए किया ताकि आप सारा जितना भी 0 था 1 था वो सब आपको 0 कर दो. बाय डिफॉल्ट आप 0 पे आ जाओ. ओके
ये करने के बाद आपको स्टार्ट कहां से करना है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू? यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट? चैनल. इन ऑर्डर टू सेलेक्ट चैनल, व्हाट यू हैव टू डू? पोर्ट 2 पे आप क्या डालोगे? व्हाट यू पुट ऑन पोर्ट 2? टेल मी. व्हाट यू पुट ऑन पोर्ट 2? 1. चैनल 5 सेलेक्ट करना है. चैनल 5 सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट 2 पे क्या डालना पड़ेगा? दिस इज योर पोर्ट 2. ओके, पोर्ट 2 हैज 8 पिन्स इनटू इट. पोर्ट 2 हैज 8 पिन्स इनटू इट. बराबर ना? लास्ट 3 पिन क्या होना चाहिए? 1 0 1. उससे पहले सारे पिन कितने होने चाहिए? 0 0 0 0 0. सो व्हाट शुड आई पुट इन पोर्ट 2? पोर्ट 2 में क्या ट्रांसफर करना चाहिए मुझे? 0 5H. 05H. Okay, so I'll write down an instruction: move port 2, comma, hash. What should I write? 0 5H. What is the reason of doing this? In order to select what? In order to select what? Channel 5. चैनल 5 सेलेक्ट करने के लिए मेरे को ये डालना है. तो एग्जाम में चैनल चेंज हो सकता है, तो ये डेटा आपका चेंज होगा. इसी पॉइंट क्लियर? अभी तक बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी. जो चीज चेंज होगी वो ये चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकती है, और ये चीज चेंज हो सकती है. आई जस्ट अंडरलाइन इट कैन चेंज. इसी पॉइंट क्लियर टिल नाउ? ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? Yes. अब आपको क्या करना है? पहला स्टेप हो चुका है. अब आपको लैच स्टार्ट करना और स्टॉप करना है. यू वांट टू स्टार्ट द लैच एंड यू वांट टू स्टॉप द लैच, राइट? सो आपको क्या करना पड़ेगा? सेट बी करना पड़ेगा. स्टार्ट करने के लिए सेट बी करना पड़ेगा. उसको 1 करना पड़ेगा. किसको 1 करना है आपको? P3.0, P3.1, P3.2. किसको करना है? P3.0. आपको इसको 1 करना पड़ेगा. As soon as it is 1, you have to clear it also. उसको 0 भी करना पड़ेगा. How to do that? Again, write clear and किस पिन को 0 करना है? P3.0. So ये किस लिए किया आपने? ये किस लिए किया? एड्रेस लैच एनेबल के लिए किया आपने. In order to capture the sample. Is the point clear? आपने इसको 1 किया फिर 0 कर दिया. It is just like you're switching, turning a fan on and then off. So similarly, लैच पे आपने 1 किया फिर 0 किया. Is the point clear? ये दो लाइन समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये आपने कर लिया. लैच आपने एनेबल कर लिया. आपने एक मोमेंट पे आपने वोल्टेज को कैप्चर कर लिया. नाउ यू वांट टू स्टार्ट द कन्वर्जन. स्टार्ट कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किस पिन पे 1 पास करना पड़ेगा? जस्ट गो लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी. स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन किस पिन पे है? आपको 1 करना पड़ेगा. P3.1. सो P3.1 पे आपको सेट बी करना पड़ेगा. सो सेट बी आप कैसे लिखोगे? SETB, सेट बी, एंड यू वांट टू मेक P3.1. P3.1 होते ही आप क्या कर रहे हो? बेसिकली दिस यू आर डूइंग एज start of conversion. You're telling your ADC to start the conversion. Okay, start of conversion हो गया. अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? अब वेट करना है ना. आपको एक्सेप्ट करने से पहले वेट करना पड़ेगा जब तक एंड ऑफ कन्वर्जन आए ना. बराबर बराबर. Yes. So in order to wait on a line, हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं which is called as a jump if not bit. Okay, JNB. You are waiting for that bit to become 1. So which bit are you waiting for? किस bit का वेट कर रहे हो जो 1 हो जाए? P0.0. P0.0. P0.0 का आप वेट कर रहे हो कि अगर ये 1 हो गया तभी मैं आगे लाइन पे जाऊंगा. जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक मैं उसी लाइन पे वेट करता रहूंगा. For what is the meaning of it? I am waiting for the conversion to get over. Okay, so the meaning is I'll be waiting at pin P0.0 and I'm waiting for that pin to become 1. Okay, so in order to wait, I'll write a label called as wait, and the same line I'm referring as wait. So I'll wait on the same line until and unless that pin which is P0.0 does not become 1. ये लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको? Is the working of this line clear? Why I'm waiting on that line? In order to get the signal EOC. EOC कौन सेंड कर रहा है आपको? ADC सेंड कर रहा है, राइट? ADC कब सेंड करेगा ये हमें पता नहीं. तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो पिन जो है which is P0.0 वो 1 ना बन जाए. In order to do that हमको एक इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा which is GNB, which is jump if not bit. Okay, jump तभी करोगे आप जब वो नॉट रहेगा. अगर वो सेट हो गया तब आप अगले लाइन पे आ जाओ. ब्रेक द लूप. ओके, तो जब तक वो 0 रहेगा तभी आप उस लाइन पे जंप करते रहोगे. जैसे ही वो एंड ऑफ कन्वर्जन की पिन से आपका 1 आ गया P0.0 पे, आप अगली लाइन पे आ जाओगे. इसी पॉइंट क्लियर?
Is this line clear? Yes. Is the line clear? ओके अब मतलब आपने क्या कर लिया, आपने वेट कर लिया, आपने सब वेट कर लिया, आपका एंड ऑफ कन्वर्जन आ चुका है, यानी आपका कन्वर्जन हो चुका है, एक सैंपल पॉइंट का कन्वर्जन हो चुका है। अब आप क्या करोगे? यू वांट टू एनेबल द आउटपुट, यू वांट टू डिसेबल द आउटपुट। हाउ टू एनेबल एंड हाउ टू डिसेबल, क्या करना है आपको? एनेबल करना है, डिसेबल करना है? सेट बी P3.2। Enable P. ओके सो आपको एनेबल करना है। सो एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेट बी, और किस पिन को करना है? P3.2 को। Okay, so what is the meaning? Your output enable को आपको 1 करना है. So you are doing that by making P3.2 as 1. Is this line clear? Is this line clear? Yes. अब जो भी पिन है, अब जो भी आपका पोर्ट 2 है, आपने ऑटोमेटिकली कहाँ पे कनेक्ट किया है? जो इनपुट पिन है, जो आउटपुट पिन है, वो आपने कनेक्ट किया है पोर्ट 1 से। सो सारा डेटा कहाँ पे आ जाएगा? पोर्ट 1 पे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर लाइन से। एवरी डेटा विच इज at present at 2⁻1 से लेके 2⁻8 you have connected with your port 1, वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा आ चुका होगा पोर्ट 1 में। अब इस डेटा को आपको कहाँ पे मूव करना है? इनटू योर एक्यूमुलेटर। यू वांट टू मूव दैट डेटा इनटू एक्यूमुलेटर। डेटा कहाँ पे आ चुका है? बाय राइटिंग दिस लाइन व्हिच इज सेट बी P3.2। इसका मतलब सारे जो आपके इनपुट पोर्ट थे जिससे आपका आउटपुट पिन कनेक्टेड था, डेटा पिन कनेक्टेड था, उस डेटा पिन से आपका इनपुट पिन पे डेटा आ चुका है। सो हु हैज गॉट द डेटा? पोर्ट हैज गॉट द डेटा। Which port has collected data? कौन सा पोर्ट आपका कलेक्ट कर चुका है डेटा? Which port has P1। collected data? P1। P1 के पास डेटा आ चुका है। आपको उस P1 से आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? एक्यूमुलेटर में। You want to transfer into a processor. So प्रोसेसर में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? The instruction is move एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है। So what should I write? A, P1 और P1, A, P1। यानी आपने क्या किया? जो पोर्ट 1 में जो डेटा था which is a digital data which has been converted by ADC and वो जनरेट हुआ था 2⁻1 और 2⁻8 because it is being converted to port 1, वो सारा डेटा आउटपुट एनेबल की वजह से सारे डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पोर्ट 1। पोर्ट 1 में डेटा तो आ चुका है, अब उस पोर्ट 1 से आप एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। सो एक्यूमुलेटर में डेटा आ चुका है। अब आपको क्या करना है? व्हाट यू वांट टू डू नाउ? उसको आपको ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर से टू 30H पे ट्रांसफर करना है, या आपको 30H लोकेशन पे ट्रांसफर करना, राइट? यू वांट टू ट्रांसफर इट टू अ लोकेशन कॉल्ड एज 30H, राइट? सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू? एक्यूमुलेटर से आपको ट्रांसफर करना टू अ लोकेशन कॉल्ड एज 30H। सो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन ओवर हियर? ये तो कंफर्म है आपको एक्यूमुलेटर से ट्रांसफर करना है, आपको मूव करना है, लेकिन कहां पे मूव करना है? वेयर यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर? क्या लिखोगे आप यहाँ पे? @ R0। Can I write R0 over here? R0 has what? 30H into it. R0 has 30H into it, right? So it is transferring the data to a location pointed by 30H. Is this instruction clear? Instruction clear हुआ ये? Yes sir. अब आपको क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है R0 को। अब R0 क्या हो जाएगा? R0 30H था, अब वो क्या बन जाएगा? 31, बराबर। और आपको यही प्रोग्राम आपको कब तक करना है? यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू अप्लाई अ लूप व्हिच इज कॉल्ड एज DJNZ। कब तक आपको ये करना है? जब तक आपका R7 जो है, जब तक जो आपका R7 है वो क्या ना हो जाए? डिक्रीमेंट R7 टिल इट बिकम 0। ओके, और ये कहां पे आपको जंप करना है? टू अ लोकेशन कॉल्ड एज बैक। आपको ये बैक पे वापस जंप करना। सो ये यहां तक आपने जो किया था, यहां तक जो आपने किया था, इस पार्ट तक जो आपने किया था, आपने एक सैंपल को कन्वर्ट किया था इनटू अ बाइनरी एंड आपको उसको ट्रांसफर कर दिया था एक लोकेशन पे। आगे जो 2 लाइन है, इट इज इंक्रीमेंटिंग योर एड्रेस ऑफ R0 व्हिच इज स्टोर्ड इन R0 एंड देन आपको ये पूरा लूप बार बार करना पड़ेगा आपको अगले सैंपल के लिए, फिर अगले सैंपल के लिए, फिर अगले सैंपल के लिए। ऐसा आपको कितनी बार करना पड़ेगा? 10 बार। और 10 बार आप कहां पे स्टोर करोगे? पहले 30 में करोगे, फिर 31 में करोगे, फिर 32 में करोगे, फिर 33 में करोगे। कब तक करोगे? जब तक 39 तक डेटा फिल ना हो जाए। इज द पॉइंट क्लियर? इज द प्रोग्राम क्लियर? इज द प्रोग्राम क्लियर? Yes sir. Yes। एंड फाइनली आपको प्रोग्राम एंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट जंप। आपको शॉर्ट जंप करना पड़ेगा टू अ लोकेशन कॉल्ड एज हियर एंड इसी लाइन को आप हियर कर दोगे। So that is this is the end of the program.
So this is the complete program. So अगर आपको सवाल पूछा जाएगा write a program to transfer a single data, अगर single data ट्रांसफर करने के लिए बोला गया तो आपको फिर ये R7 इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है. ओके आपको R7 तभी इनिशियलाइज करना जब आपको एक ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है. ओके अगर एक बिट का एक बाइट का डेटा ट्रांसफर करना है आपको जरूरत नहीं R7 को इनिशियलाइज करने के लिए. आप एक सैंपल लोगे विदाउट यूजिंग एनी लूप, यू जस्ट हैव टू ट्रांसफर इनटू एनी लोकेशन व्हिच इज बीन गिवन ओवर देयर. लेकिन अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ लोकेशन ट्रांसफर करना है, ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है टू अ गिवन लोकेशन, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा. इज दिस प्रोग्राम क्लियर? इज द प्रोग्राम क्लियर? इज इट डिफिकल्ट? Was the program Yes. difficult? प्रोग्राम डिफिकल्ट है, समझ में आया नहीं समझ में आया, क्या है? डिफिकल्ट है और समझ में भी आया. समझ में आया? ओके सो मैं आपको अगली क्लास में फिर से इसको रिपीट कर दूंगा. इफ इट इज डिफिकल्ट, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आई एम सॉरी फॉर टेकिंग योर एक्स्ट्रा 15 मिनट. प्लीज जॉइन इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला.